in the inner heart, in the spiritual life, there is expansion. Hallelujah. परमेश्वर आपको वृद्धि देगा मेरे प्रियो. Hallelujah.
to your Bible, আসুন আমরা প্রভুর বাক্য বার করি। আজকে परमेश्वर के वचन को निकाले 2 King chapter 6 दूसरा राजा उसका 6 chapter 6 verse 1 बताती है, now the sons of the prophet said to Elijah, behold, now the place before you where we are living is too limited for us. आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी यहाँ वचन बोला जाए वो हमारे हृदय को छेद दिखाए। God, we want to receive the fresh manna from you, God. प्रभु, हम ताजा मन्ना आज हमारे जीवन में लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बात बताती है कि एलीशा एक स्कूल चला रहा था और जब वो स्कूल चला रहा है तो कुछ लोग जो उसके संग थे वे रियलाइज करते हैं एंड what they said, उन्होंने कहा भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया है? छोटा हो गया है, सकेत हो गया है, लिमिटेड प्लेस है। Amen. Hallelujah. Remember, when God involved in anything, amen, when God involved in anything, there is an expansion. Amen. Amen. जब प्रभु कोई भी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, if God is involved in your business, there is expansion. Amen. If God is involved in your ministry, there is expansion. When God is involved in your family, जब प्रभु आपके परिवार में इन्वॉल्व होता है, expansion. Amen. বৃদ্ধি আছে। যখন প্রভু ইনভলভ হয় আমাদের জীবনে, তার মানে হচ্ছে আমাদের জীবনে বৃদ্ধি হবে। We will have expansion. Amen. That's why Bible says this prophet এরা বলছে নিজের গুরুকে বলছে, গুরু, আমরা যে জায়গায় আছি, আমরা যে জায়গায় তোমার বাক্য শুনছি, যে প্রভু দ্বারা তুমি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছ, this place is becoming limited. এই জায়গা ছোট হয়ে গেছে। Amen. Hallelujah. যদি আজকে प्रभु आपका जीवन अगर परमेश्वर आपके जीवन में इन्वॉल्व है, इसका मतलब नहीं कि आप कम होंगे, इसका मतलब है कि आप बढ़ेंगे। Amen. Hallelujah. अगर आज आपके जीवन में कुछ कम हो रहा है, that means somewhere you are not involving God. Amen. अगर आपके जीवन में वृद्धि नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं प्रभु को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। Amen. Hallelujah. If God is involved in your life, there is expansion all the time. Amen. Hallelujah. 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 परमेश्वर जब हमारे जीवन में इन्वॉल्व होता है, वहां पर गुणा तरह से मल्टीप्लिकेशन, Amen, मल्टीप्लिकेशन होता है। वहां पर आप जहां हो सिर्फ वही नहीं रहते, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। Amen. और जब परमेश्वर के दास को उनके चेलों ने कहा कि प्रभु, हम जिस जगह में आराधना कर रहे हैं वो जगह छोटा हो गया है। Amen. Hallelujah. আমরা যখন প্রভুতে এসেছিলাম, প্রভুতে আসার আগে ও আমি একটা ছোট ঘরে ছিলাম, কিন্তু now I see God is blessing my life.
ঈশ্বর আমার জীবনকে আশীর্বাদ করছে। আমেন, হালেলুয়া। If God is involved in anything, my dear friends, if God is involved in anything, अगर आज प्रभु कहीं भी आपके जीवन में इन्वॉल्व है, there is expansion. Amen. वहाँ पर वृद्धि है, 100% वृद्धि है. Amen. If God is involved in your relationship, maybe in your family, there is expansion. Amen. परमेश्वर आज बहुत सारे फैमिली टूट रहे हैं. Why? You know, because God is not involved in your family. Amen. Hallelujah. Why? एक भाई दूसरे भाई को प्यार नहीं कर पाता. There is no involvement of God. Amen. Hallelujah. हाबी के तरफ से प्रभु इन्वॉल्व था, कैन के तरफ से प्रभु इन्वॉल्व नहीं था. Amen. That's why this problem is happening. अगर आज प्रभु आपके जीवन में इन्वॉल्व है, there is a growth, there is expansion from God. एक जाएगा वृद्धि आए. Hallelujah. 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 We need to understand that हमें ये परमेश्वर को हर एक जगह इन्वॉल्व करना है. Amen. Hallelujah. And then what happened? Multiplication. गुणन वृद्धि. Amen. Hallelujah. परमेश्वर हमें गुणन तरह से multiplication वृद्धि देना चाहता है. God wants to give this kind of growth in our life. That's why यहाँ पर तीसरा चीज हम देखते हैं, realization. Amen. Hallelujah. এইখানে শিষ্যরা রিয়েলাইজ করছে, yes, আমরা বৃদ্ধি পাচ্ছি. Amen. Hallelujah. I'm telling you one thing. Very soon you will realize. बहुत जल्द जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, very soon you will realize. आप realize करेंगे कि God has blessed you so much that you need expansion in your life. Hallelujah. बहुत जल्द आपको ये फील होगा कि परमेश्वर ने आपको जहां रखा है उस जगह में बहुत वृद्धि दी है. अब आपको फैलना है, अब आपको बढ़ना है. ये आपको एहसास दिलाएगा प्रभु बहुत जल्द. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is God who will give you blessings. But only one thing, you need to involve your heart. Involve your Jesus. Amen. Hallelujah. जब आप प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं, वो आपको रियलाइजेशन देता है. जब आपके अंदर रियलाइजेशन होगा कि नहीं, लगता है मेरा जीवन अंधेरे में जा रहा है, रियलाइजेशन. Amen. Oh, I'm going into the darkness. Realization. Amen. God will speak to you. ईश्वर आपके साथ बात बोलते. Amen. Hallelujah. I always want that God to speak to me. আমি সবসময় চাই প্রভু, I want to realize everything that what I'm doing. আমি সবসময় রিয়েলাইজ করতে চাইছি যে আমি কি ঠিক করছি না ভুল করছি. What I'm doing, am I doing right thing or am I doing the wrong thing in my life, Jesus? আজকে মানুষ একের উপরকে অপমান করে রিয়েলাইজ করে না. Amen. Hallelujah. Realization নেই আজকে. That's a very powerful word it is. Realization. আজকে মানুষ একের উপরকে অপমান করে ফিল করে না, কেন I have insulted somebody. আমি কারো অপমান করেছি. আমরা এত কঠিন হয়ে গেছে. আমাদের হৃদয় পাথরের মতন হয়ে গেছে. যদি আজকে আমরা কাউকে কিছু ভুল বলেও দিয়েছি, আমরা রিয়েলাইজ করি না, না একবার বলে দিই না আমার ভুল হয়েছে. রিয়েলাইজেশন নেই.
Amen. Hallelujah. इसलिए आज के ईश्वर के আমরা involve করি, we will have the blessings of realization. Amen. Hallelujah. কালকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো এখানে। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের সময় আমি যখন এসেছি, তো আমি দেখলাম আমার অফিসের ওই দরজাটা এরকম খোলা। এরা বলছে मास्टर जी अंदर मत जाइए, अंदर सांप ढुक गया है। मैं बोला सांप ढुक गया है? निकला नहीं, बोला नहीं निकला। कैमरा में देख रहे सी द कैमरा, और मैंने कैमरा में देखा कि वो सांप मेरे रूम में घूम रहा है। तो फिर मैं बोला कहाँ गया? तो रोशन बोल रहा है मैंने देखा कि वो इस दरवाजे से निकल गया। इस दरवाजे से, डरो मत, आपके वहां नहीं, इस दरवाजे से निकल गया। निकल गया, ये पूरा रूम खोजा मेरा, अलमारी के नीचे इधर उधर पूरा सब कुछ खोजा, कहीं नहीं मिल रहा है। तो फिर लगा कि यहाँ पर होगा, पूरा खोजा, यहाँ पर पूरा खोजा। वो मीडिया रूम जाकर खोजा, हम लोग कहीं नहीं मिल रहा है। हमें रिसेप्शन का भी सेटिंग करना था। मैं बोला चलो आज ही हो जाए। तो फिर वो लोग रिसेप्शन का टेबल निकाल रहे थे, मेरे चिल्ला लगा हुआ है। I was so worried कि वो सांप कहाँ होगा पता नहीं, क्योंकि कल संडे है, कल बच्चे इधर उधर घूमेंगे, पता नहीं कहाँ होगा पता नहीं। मैं वहाँ गया, यहाँ आया, मेरे संग बहुत सारे बच्चे लोग भी घूम रहे थे, सब घूम रहे। मैं वहाँ जा रहा हूँ, उधर भी आ रहा, इधर जा रहा, इधर भी है। तो फिर बोला निकल गया होगा सांप, उधर से निकल गया होगा। मैंने वहाँ का कैमरा देखा, मैं नहीं, यहाँ से तो कोई सांप गया नहीं, तब इसी में ही होगा। सब चिंता कर रहे हैं क्या होगा। मैं वहाँ गया, फिर वहाँ यहाँ आया, यहाँ गया। आपको आदत है, मैं आपको मालूम है मेरा आदत ऐसे ऐसे करने की, ये हो गया। मैंने बस ऐसे किया, रियलाइज ऐसे किया और ऐसे किया बस। मैं यहाँ आया, मैं बोला तुम लोगों ने अलमारी के नीचे देखा? हाँ मास्टर जी देखा। मैं बोला रुको, अलमारी के नीचे ही। मैंने ऐसे दरवाजा खोला, अलमारी के नीचे। God told me this day. When you connect anything with God, He is always there to help you. He is always there to help you. जब आप कोई भी चीज परमेश्वर से कनेक्ट करो, you will get answer. When you get answer, when you realize. जब आप realize करोगे, इस prophet, ये लोग भी भविष्यवक्ता थे, ये लोगों ने realize किया कि yes, আমি যে জায়গায় আছি সেই জায়গা ছোট হয়ে গেছে। मैं जिस जगह में हूँ वो जगह छोटा पड़ गया है। Amen. I need expansion. Amen. Hallelujah. कोई फिर से पढ़े 6:1। यहाँ बाइबल बताती है कि जब भविष्यवक्ताओं ने ऐसा सोचा कि ये जगह छोटी पड़ गई है, तो इसे अब बड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, God is going to give you expansion. परमेश्वर आपको वृद्धि देने वाला है। Amen. परमेश्वर आपको वृद्धि देने वाला है। How He is going to expand your life? प्रभु आपको वृद्धि कैसे देगा? He will take you right, He will take you left, He will take you forward, and He will take you back. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आपको दाहिनी तरफ से भी बढ़ाएगा, प्रभु आपको बाएं तरफ से भी बढ़ाएगा, प्रभु आपको आगे भी बढ़ाएगा, प्रभु आपके पीछे से भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हो, when you involve your Jesus in your family, when you involve your Jesus in your personal life, when you involve your Jesus in your inner heart, in your spiritual life, there is expansion. Hallelujah. परमेश्वर आपको वृद्धि देगा मेरे प्रियो। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. He will not allow only right side to grow. Amen. प्रभु सब समय बैलेंस रखे. Amen. उन्हीं बैलेंस रखे. He always try. उन्हीं सब समय चेष्टा करें कि हमारे लाइफ बैलेंस से থাকো. अगर ওই একটা জায়গায় তো ঠিক আছে কিন্তু অন্য জায়গায় আমার প্রবলেম বেড়ে যাচ্ছে, এই জায়গায় আমি ঠিক আছি কিন্তু কেন আমি পিছনে যাচ্ছি, আমি এগোতে পারছি না, আমি ডান দিকে তো ঠিক আছে কিন্তু বাম দিকে আমার ঠিক হচ্ছে না। परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु इन्वॉल्व होता है आपके जीवन में, जब प्रभु आपके जीवन में दखल देना स्टार्ट करता है, जब प्रभु आपके जीवन में आता है, वो आपको सिर्फ एक जगह में नहीं बढ़ाता, वो आपको चारों तरफ बढ़ाता है। Really, I'm telling you, very soon, बहुत जल्द आपके अंदर ये रियलाइजेशन होगा कि प्रभु ने मुझे वृद्धि दी है। Hallelujah. Very soon, many of you, बहुत सारे लोग ऐसा रियलाइज करेंगे, now I need to have my own house, now I need to have a bigger house, now I need to have a bigger business, now I need to go for a better job, now I need to go for a better university. मुझे expansion मिला है. When God is involved, there is expansion. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus is involved in your life, जब यीशु आपके जीवन में involved है, वहाँ वृद्धि है. Amen. Hallelujah. We need to realize that God is there. प्रभु तैयार है. Amen. But realizing two things is dangerous. One is positive and one is negative. जब आप पॉजिटिव सोचते हैं आप आगे बढ़ेंगे, परंतु जब आप नेगेटिव सोचते हैं आप पीछे जाएंगे. यहाँ पॉजिटिव क्या है? यहाँ पॉजिटिव है कि जहां वे थे वो जगह क्या हो गया उनके लिए, पर नेगेटिव क्या है? कहां से बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ेगा? Amen. Positive and negative. Positive in a sense, এবার কি হবে, এবার কি করে আমরা এগোবো, that's the negative one. The positive one is we will grow. हम इसको पॉजिटिव लेते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर आप पॉजिटिव तरह से इसको सोचो आप आगे बढ़ सकते हो. अगर आप नेगेटिव तरह से सोचो तो आप उस प्रॉफिट उस स्कूल को बंद करना है, क्योंकि अब हम चला नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, अब हम ले भी नहीं सकते हैं. That's a negative one. Positive way, now we need expansion. अब मुझे इसको बढ़ाना है. Amen. Hallelujah. Positive. अगर हम पॉजिटिव ले तो we can grow more. अगर हम नेगेटिव ले तो हम जहां हैं हम वहीं रह जाएंगे. Amen. Hallelujah. Don't stuck in one place. एक जगह खड़े ना रहे और आगे बढ़े. Amen. Hallelujah. यहाँ पर जिस स्थान से हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सकेत है, हमारे लिए छोटा है. Amen. Behold now the place before you where we are living is too limited for us. Amen. ये परीक्षा है, ट्रायल. कोई भी परीक्षा नहीं चाहता अपने जीवन में. जैसे कोई थोड़ा विपत्ति आती है हमारे जीवन में हम बोलते हैं क्यों विपत्ति आई हमारे जीवन में. Amen. Why this problem came in my life? जैसे हमारे जीवन में कुछ परीक्षा है, but I'm telling you one thing, trials makes us stronger. Amen. परीक्षा
हमें और मजबूत बनाती है। परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। आमीन। अपने बगल वाले को कहें, परीक्षा मुझे और स्ट्रांग बनाती है। Trials makes me more stronger. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When a trial comes, যখন পরীক্ষা আসে, তার মানে নয় যে আমি পালিয়ে যাব। We need to stand firm. এখানে একটা পরীক্ষা এসছে, ওই পরীক্ষা কি? জায়গাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। Now what to do? क्या करना है? This kind of trial, ये परीक्षा है हमारे लिए। आज अगर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में यदि परीक्षा আসছে, তার মানে নয় প্রভু আমাদের পরিবারকে ভালোবাসে না। এবার আমাদের পরিবারকে আরো মজবুত করতে হবে। এবার আমাদের পরিবারকে স্ট্রং করতে হবে। এবার আমাদের প্রভুকে কিভাবে ভরসা রাখতে হবে, তার মানে উনি আমাদেরকে বৃদ্ধি দিতে চাইছেন। আমেন। হালেলুয়া। যদি আপনাকে আপনার বাড়িওয়ালা বলছে ঘর ছেড়ে দিন, ঘর ছেড়ে দিন, that is trial. Amen. God will. Don't take it negatively. Don't take it negatively. If your landlord is saying, যদি আপনার বাড়িওয়ালা বলছে ঘর छोड़ते जाओ यहाँ से, take it positive way. Okay, I need to realize ঈশ্বর আমাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। Take it in a positive way. Amen. Hallelujah. যদি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার এরকম কেউ আছে যে বলছে আমি আমার এই সম্পত্তি থেকে তোমাকে দেব না, তোমাকে আমরা দেব না, no problem, take everything. That means আমাকে এই সম্পত্তি থেকে বেশি ঈশ্বর দেবেন। Take it off, don't fight. Amen. Don't fight, but build a relationship. I'm telling you, আমি আপনাকে বলছি, যারা আপনাকে এরকম বলছে একদিন আপনার চরণে এসে বসবে আর বলবে আমার ভুল হয়েছে। Amen. Take everything positively. Take everything. We need to realize that we are the blessed people. Amen. हम आशीषित लोग हैं। हम आशीष दया से नहीं लेते हैं, हम परीक्षाओं को पास करके आशीष पाते हैं। Amen. Hallelujah. Trial makes us strong, my dear friends. আজকে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আছে। Oh, God is making us. প্রভু আমাদেরকে তৈরি করছেন। Amen. Hallelujah. Verse 2 and 3. 2 and 3. Please let us go to Jordan, and each of us take from there a beam, and let us make a place there for ourselves, where we may live. So he said, go. Then one said, please be willing to go with your servant. And he answered, I shall go. Amen. यहाँ पर बहुत सुंदर वचन है। যারা শিষ্যরা ছিল ওরা বলল, গুরু চলো আমরা जॉर्डन रिवर जाए, जॉर्डन नदी जाए, हम यरदन नदी के उधर जाते हैं और वहां से एक बल्ली लेकर, एक एक्स लेकर, एक कुल्हाड़ी लेकर हम वहां जाए और अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। और what happened? 3 में लिखा है, तब किसी ने कहा अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। Amen. नहीं करेंगे। यहाँ पर जब चलो ने रियलाइज किया कि ये जगह छोटा हो गया, stay. Amen. जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हमें विश्वास का कदम उठाना है। कौन सा कदम? विश्वास का कदम। Amen. Hallelujah. क्योंकि हमारे पैर बहुत आशीषित हैं। Amen. Our feet are very blessed. हमारे पैर बहुत आशीषित हैं। How you know? बाइबल कहती है जहाँ तू अपना पैर रखेगा वो जगह में तुझे, that means we are claiming that place. Amen. प्रभु ने कहा अगर कोई तुझे ग्रहण ना करे तो अपने पैरों के
आमेन। अपने पैरों के धूल को नीचे झाड़ देना और वो धूल एक दिन गवाही देगी कि हाँ उसने समाचार सुनाने आया था। आमेन। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, विश्वास का कदम बढ़ना है। इसका कदम विश्वास का कदम। आमेन। विश्वास का कदम कि अब जय हमारा है। आमेन। हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। Nobody can defeat us when Jesus is with us. Amen. जब यीशु हमारे संग है, हमें कोई हरा नहीं सकता। चलो ने कहा कि गुरु चल मेरे संग। Amen. That's a different thing. बहुत लोग पास्टर जी को बिना बोले सब कुछ कर लेते हैं। जब सब कुछ कर लेते हैं, जब सब कुछ भूल हो जाता है, तब बोलते हैं I messed up. हमसे गलती हो गई पास्टर जी, आपसे पूछना चाहिए था। और ऐसे बोलते हैं मुझे कि मतलब मेरा ही दोस्त है, ऐसे बोलते हैं। आप एक बार भी हमको टोकते, आप एक बार भी हमको बोलते, हम तो आपका बच्चा है, आप तो बोल ही सकते हैं। कभी कभी मैं बोलता हूँ, कभी कभी मुझे पता नहीं आप क्या करते हो। अगर मुझे पता है मैं जरूर बोलूंगा। और यहाँ पर एलाइशा को पता है वो लोग जा रहे हैं, परंतु एलाइशा ने क्या कहा? जाओ। आमेन। हालेलुया। क्योंकि इनको मालूम था ये एक्सपेंशन जो हुआ है, ये मेरे गुरु के वचन सुनते सुनते हमारा विश्वास बढ़ते बढ़ते हमारा एक्सपेंशन हुआ है। आमेन। तो हमें हमारे गुरु को लेकर ही जाना है। अगर वो रहेगा तो शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो सकता है। आमेन। शायद अगर कुछ समस्या हो तो संगे संग हमारा गुरु बोलेगा ऐसे करना है, वैसे करना है। और संगे संग प्रभु के दास ने कहा हाँ मैं चलता हूं। आमेन। जैसे कहा कि गुरु मेरे संग चल, हम सबके संग चलो, वो कहा मैं चलता हूं। 4 में लिखा है तो वो उनके संग चला, वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। वे क्या करने लगे? क्या करने लगे? लकड़ी काटने लगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन लोगों ने रियलाइज किया था कि हमारा जगह छोटा हो गया है। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वे एक्शन में आते हैं। विश्वास अगर एक्शन के बिना है तो विश्वास व्यर्थ है। आमेन। Faith without action is dead. विश्वास अगर कार्य नहीं है तो हमारा विश्वास मृतक है। आमेन। हम विश्वास तो करते हैं कि प्रभु हमारे निश्चय आशीर्वाद देवे, परंतु हम ऐसा कुछ काम नहीं करते कि प्रभु हमें आशीष दे। आमेन। हम विश्वास तो करते हैं कि प्रभु एक दिन जरूर मेरे परिवार को अच्छा करेगा, पर हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम विश्वास तो करते हैं कि एक दिन प्रभु मुझे जरूर चंगाई देगा, परंतु चंगा होने के लिए हम उस अंधे की तरह प्रभु को पुकारते तो नहीं है। बस हम चर्च में सिर्फ संडे आते हैं और कहते हैं प्रभु तुम्हें कबे हमारा सुस्त करबे। 6 दिन हमारे घर में परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता, 7वां दिन हम सिर्फ यहाँ आकर लेते हैं। आमेन। हालेलुया। You need to take the name of Jesus. You need to have an action in your life. और जैसे ही ये चेलों ने अपने गुरु को कहा, उसके बाद बाइबल बताती है उनके अंदर हरकत आया। क्या आया? एक्शन। They realize अब हमें आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है, कदम आगे बढ़ाओ। आमेन। हालेलुया। अपने पैरों को आगे बढ़ाओ, अपने विश्वास में आगे बढ़ो, अपने प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ो, अपने परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है उसमें आगे बढ़ो।
बढ़ो। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने दान दिया है, उस दान में आगे बढ़ो। Amen. Don't stay in one place. God wants हमारे जीवन में वृद्धि हो, हमारे जीवन में expansion हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 5, 5 में क्या लिखा है? So powerful word it is. वहाँ क्या लिखा है? एक जन क्या कर रहा था? कुल्हाड़ी को लेकर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? हिटिंग। Amen. बाइबल बताती है, so powerful it is. एक जन कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहा था? लकड़ी को बस हिटिंग। पर प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका आयरन, आपका एक्स, आपका कुल्हाड़ी अगर धार नहीं है तो क्या होगा? It will bounce back. Amen. अगर आपका जो कुल्हाड़ी है, यदि अपनी घास काट से यदि साफ नहीं, यदि धार नहीं, it will bounce back. Amen. वे कुल्हाड़ी काट तो रहे थे, but it was bouncing back. It was bouncing back. They were hitting very hardly, but it was bouncing back. Amen. Hallelujah. आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन ऐसे ही है। हम चाहते तो है आशीष को ले लेना, परंतु it was bouncing back. Nothing is coming. हम संग्रह नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रहा, हमारे बच्चे को जीवन अच्छा हो नहीं रहा है। Why? No, because they are not serving. हम अपने एक्स को, हम अपने कुल्हाड़ी को धार नहीं कर रहे हैं और हम जबरदस्ती चाहते कि नाश कर जाए, but it cannot happen. Amen. See what Bible says here. They were hitting, but it was bouncing back. आज हमें हमारे आयरन को साफ करने की जरूरत है। आज हमें हमारे विश्वास को साफ करने की जरूरत है। आज हमें हमारे प्रेयर लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। Amen. आज हमें हमारे पर्सनल लाइफ को जो प्रभु के संग है उसको और अच्छा करने की जरूरत है। Amen. जब आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, प्रभु आपसे बहुत खुश होगा। What happened here, you know? जब वो कुल्हाड़ी मार रहा था, और it was bouncing back. आज के आपका जीवन में परिश्रम बच्चे, কিছু কিছু জিনিস very easily পাওয়া যায়। কেন আমরা পরিশ্রম করতে জানেন? Because আপনার prayer life খুব ভালো নয়, আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে যে রিলেশনশিপ আছে যেটা খুব একটা स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर आज हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आज हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति सही होगा, मैं आपको बता दूं, आपको इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और आगे वे लोग डांस काट रहे थे। Can you read again this verse? कभी-कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं किसी काम में, हम भूल जाते हैं। रात में हमसे मिलने वाले प्रभु सारा दिन तुम्हारे साथ কথা बोली प्रभु। इवन संडे चर्च में आके हम बोलते हैं प्रभु बहुत दिन से आपसे अच्छी तरह से प्रेयर नहीं किया। Amen. My dear friends, you can be busy, but you cannot be lazy. Amen. You can be busy, but you should not be lazy. God knows the busyness, but God hates the laziness. It is God who made you busy, but not it is God who made you lazy. It is you who became lazy in your life. Amen. परमेश्वर आपके बिजनेस को जानता है, परंतु आपके आलसीपन को पसंद नहीं करता।
Amen. अगर आप आलस हैं, that means it is your purpose. Amen. This prophets, ये जो भविष्यवक्ता थे, they were busy doing something but they were not lazy. Amen. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हमारे पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, हम इतना बिजी, सब समय हम फोन में बात करते हैं, सब समय you talk long calls, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक एक तो मैं सुनता भी हूँ कि आजकल के नौजवान रात भर फोन में बात करते हैं। पर मुझे याद है when I was in those age, जब मैं अपने एज में था, I should talk to Jesus. Amen. I should fast and pray. Amen. And I should see the face of God in my life. आज हमारा जो एक्स है, is become rent, is not soft. धार नहीं है. They were just cutting the tree, but it was bouncing back. Amen. They were cutting the tree, but it was bouncing back. अगर आपकी कुरानी में धार नहीं है, it will bounce back. आपकी যতই চেষ্টা করুন আপনার সন্তানকে ঠিক করার, কোনোদিন ঠিক হবে না। You need to start your iron first. Amen. आप जितना भी कोशिश करो अपने जीवन को अच्छा बनाना, अच्छा नहीं होगा। You need to start your life first. अपने जीवन को धार बनाओ पहले। आप रोते रहोगे, आप तड़पते रहोगे, आप लोगों के सामने चिल्लाते रहोगे, कभी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको रियलाइज करना है, आपको सोचना है कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हो। What happened here is a powerful thing. क्या लिखा है? उन लोगों ने कहा, जब उन लोगों ने कुल्हाड़ी से मारा उसको, उस पेड़ को, तो बाइबल बताती है कि वो बल्ला जो था वहां से खुलकर कहां गिर गया? कहां गिर गया? कहां गिर गया? God says, परमेश्वर का वचन कहता है, you need to have a fire, but now you becoming a lukewarm. परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अग्नि से भरा हुआ होना चाहिए सब समय, परंतु आप गुनगुने हो गए, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। But the problem was what? जब वो बल्ला, जब वो एक्स पानी में गिर गया, कहाँ गिर गया? पानी में। कहाँ गिर गया? पानी में। इससे everybody कहाँ गिर गया? पानी में। बच्चे लोग ने क्या कहा? गुरु, ये तो धार मांग के लाए थे। It was borrowed one. It was borrowed one. প্রভু, সব ঠিক আছে, যদি এটা জলেও পড়ে গেছে অসুবিধা নেই, কিন্তু এটা আমাদের ছিল না, আমরা ধার নিয়ে এসেছিলাম। Amen. Hallelujah. Suppose आपने किसी से 20 लाख रुपया लिया और वो 20 लाख रुपया आपने उधार लाया और आपको मालूम है कि मैं कुछ काम करके इसको लौटा दूंगा, और 20 लाख लाते लाते कोई बाइक वाला या कोई चोर आपका चोरी करके चला गया, क्या होगा? वो पैसा आपका नहीं था, आपने कर्ज लिया था। What will happen? They were so worried. वे इतने चिंता में थे और बोले, गुरु, ये उधार मांग के लाया गया था, ये कुल्हाड़ी हमारी नहीं थी, ये कुल्हाड़ी हमने उधार मांग के लाया। It is not ours, but it was borrowed. Amen. Hallelujah. और लिखा है, they were so tense. Our God will never embarrass you. हमारा प्रभु आपको कभी भी अनकंफर्टेबल रखेगा। प्रभु आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। Amen. Something happened here.
ঈশ্বরের দাস জিজ্ঞেস করছে তুমি বলো ওটা কোথায়? আমেন। कहां गिर गया वहां बताओ। আজকে প্রভু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে आगे तो तुम ये कहेंगे बहुत स्ट्रांग थी, पहले तो तुम इस सेना में बहुत स्ट्रांग थे, अभी तुम कमजोर हो गए and we are not able to tell God कि हम कहां पर हमें मजबूत होना है। आमेन। पर मैं आपको बता दूं the secret of message, आज प्रभु हमारे जीवन में एक्सपेंशन देना चाहता है, आज प्रभु हमारे जीवन में वृद्धि देना चाहता है। बहुत लोग प्रभु में आते हैं और प्रभु में आने के बाद वृद्धि आती है, एक्सपेंशन आता है, और उस एक्सपेंशन को हम हैंडल नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम समझते हैं तब तक हम विश्वास में गिर जाते हैं। हमारा समझते समझते हम हमारे एक्सपेंशन को खो देते हैं, हमारे ग्रोथ को खो देते हैं। हम कोई भी चीज पाने के बाद हम सोचते हैं बस अब यहाँ कंफर्टेबल बैठना है, अब यहाँ पर हमें रहना है, परंतु बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ और भी ग्रोथ होना था परंतु वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु को बता नहीं रहे हैं कि हम कहाँ कमजोर हो गए। आमेन। हमें गीत गाते हैं याद कर तू कहाँ से गिरा। आमेन। हमें याद करना है, हमें रिमाइंड कराना है प्रभु को, गॉड आई एम फॉलिंग हियर, प्रभु मैं इस जगह से गिर रहा हूँ, प्रभु मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में गिर रहा हूँ, प्रभु मैं प्रेयर लाइफ में गिर रहा हूँ, प्रभु मैं कमिटमेंट में गिर रहा हूँ, प्रभु मेरे डेडिकेशन में गिर रहा हूँ, प्रभु मेरे वर्ड में मैं गिर रहा हूँ, प्रभु मेरे भाषा में मैं गिर रहा हूँ, प्रभु मेरे बिहेवियर में मैं गिर रहा हूँ, प्रभु मैं अपने रिलेशनशिप में गिर रहा हूँ, प्रभु मैं अपने वायदे से गिर रहा हूँ, प्रभु मुझे उठना है, प्रभु मुझे उठाना है, और सिर्फ कोई है तो मुझे उठा सकता है। You have to tell your God that yes Lord, in my commitment I am weak, in my dedication I am weak, oh God I want to come up again। Hallelujah, hallelujah। मेरे प्रियो, जब वो एक्स, जब वो लोहा पानी में गिर गया, प्रभु के दास ने पूछा, क्या पूछा? Can you say कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? कहाँ गिर गया? आज प्रभु पूछ रहे हैं कहाँ गिर गए? किस जगह में गिर गए? किस जगह में गिर रहे हो? घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना। अच्छा गीत गाते हो घमंड नहीं करना, अच्छा वचन पढ़ लेते हो घमंड नहीं करना, बाइबल का बहुत कुछ जानते हो घमंड नहीं करना। आमेन, हालेलुया। और मैं चर्च को पूरा देखा घमंड नहीं करना, और मैं बहुत अच्छा सुसमाचार सुनाता हूँ घमंड नहीं करना। आमेन, हालेलुया। I'm very talented, पास्टर जी अगर सामने से बोलेंगे तभी मैं कुछ करूँगा। एक दिन सन्नाटा मिलेगा वहाँ, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आमेन। अगर प्रभु ने आपको मौका दिया है तो नम्र होकर प्रभु का काम करो। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप जैसा लोग रोज बनाता है, प्रभु पास्टर डैनियल जैसा दास रोज अपने फैक्ट्री में बनाता है। आमेन। The day I will think Pastor Daniel only can do that, उस दिन प्रभु दूसरा पास्टर डैनियल बनाएगा। Amen, Hallelujah। He asked, क्या पूछा? क्या पूछा? क्या पूछा? क्या पूछा? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है?
इतने बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम आगे इसका पापा को रेस्पेक्ट नहीं करते, तुम आगे बोलो कि तुम माँ के रेस्पेक्ट करिस ना, आगे बोलो कि तुम माँ के ভালোবাসিস না। पति को भी बोलते हैं शादी के समय एक महीना हर एक बात मेरा सुनता था, अभी तो ऐसा लगता है कि मेरा बात कंकर जैसा लगता है। ऐसा तो कुछ ऊपर जैसे बराबर में हमारी इच्छा में जात करो। बहुत सारे पति अपनी पत्नी को बोलते हैं, बहुत सारी पत्नी अपने पति को बोलते हैं तुम्हारा কথা শুনে আমি চলবো না। शादी के समय তুমি যা বলবে আমি তাই করব। My dear friends, we need to realize God is asking तू कहाँ मिल गया है। शादी के 2 महीना पहले इतना सुंदर सुंदर खाना यूट्यूब पे देखकर बनाया गया था, अभी यूट्यूब नहीं अभी जोमेटो चल रहा है, ऑर्डर करे তুমি খেয়ে নাও তোমাকে কি খেতে হবে। আমি পারবো না, ये हस्बैंड भी बोलता है ऐसा, वाइफ भी बोलता है ऐसा, और ऐसा करते 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 आज दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की वाली को नष्ट कर देती है। छोटी छोटी little foxes can ruin the vineyard. Little foxes, छोटे छोटे फूल, if you ignore it, अगर आप इग्नोर करोगे छोटे छोटे गलतियों को, कोई बात नहीं, एक दिन वो बड़ा होगा। प्रभु ने पूछा कहाँ गिर गया, क्या पूछा कहाँ गिर गया, उसके बाद क्या किया, कहाँ गिर गया, उसके बाद जब उसने क्या किया, स्थान दिखाया, क्या किया, स्थान दिखाया, यस। जब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। मेरे प्रिय हो, लोहे में कोई भी जान नहीं है, आमेन। लोहे में कोई भी जान नहीं है, पर यहाँ पर हो क्या रहा है, something good happening। लोहा जब पानी में गिरा, लोहा जब पानी में गिरा, it went deep and 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 touched the ground। Amen। जब लोहा पानी में गिरा, वो डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। It was sinking and sinking and sinking and sinking and touched the ground। अगर आज हमारा जीवन कहीं से गिरता है, आप ऐसा न सोचो वही गिर कर रुका है, वो और गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, ताकि आप कभी उठ ना सको, आप कभी उठ ना पाओ। And it touched the ground। Amen। Hallelujah। What significant happened here? यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि एक पेड़ बगल में, this is a tree, एक पेड़ है, पेड़ में जान है, पेड़ में जीवन है, trees इसे living। But परमेश्वर के दास ने ये नहीं कहा कि मैग्नेट लाओ और उस लोहे को अंदर से निकालो, जिसमें जान नहीं है। Remember this, जिसमें जान नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, वो डूब गया, वो लोहा, वो एक्स पानी में गिरा और नीचे डूब गया। परंतु प्रभु के दास ने क्या कहा,
ऑलरेडी पाप में तबाह है। ऐसे लोगों के संग रहो जो थोड़ा सा भी जीवन रखते हैं, ताकि उनके द्वारा आपके जीवन में भी अच्छा कुछ हो सके। बुरी संगति हमें खत्म कर देगी, परंतु अच्छी संगति हमारे बुराइयों को खत्म करेगी। हालेलुया, हालेलुया। उस लोहे में जान नहीं था, पर उस स्त्री में जान था। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने क्या कहा, एलीशा ने क्या कहा उस लकड़ी के, क्या करो, क्या करो। आमेन। नेक्स्ट वर्स। बाइबल बताती है कि वो जो लोहा था, वो पानी में क्या हो रहा था, पानी में तैर रहा था। आमेन। Swimming. King James Version says, King James Version, the old version in English, it is written, Iron was swimming. Amen. वो तैर रहा। Hallelujah. My dear friends, when you believe Jesus, when you trust Jesus, is ready to do unusual things which you cannot think. परमेश्वर ऐसे चीजों को कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। The natural thing, प्रकृति बता रही है कि लोहा कभी भी तैर नहीं सकता, स्विम नहीं कर सकता, भागते पाएगा, but it was happening. Amen. But what happened? जैसे ही लकड़ी ऊपर रखा गया, वो मेल्ट, वो जो लोहा था, जो मेटल था, वो क्या होने लगा, आस्ते आस्ते क्या कर रहा था? It was coming up. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने आपको गिरते हुए देखा है, परमेश्वर उन लोगों को ही दिखाएगा आपको उठते हुए। Amen. जितने लोगों ने आपके परिवार को खत्म होते हुए देखा है, वे सारे लोग देखेंगे कि खुदा ने आपके परिवार को आगे से भी और भी अच्छा बनाया है। हालेलुया। जितने लोगों ने आपको जमीन में गिरते हुए देखा है, उतने ही लोग आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे। हालेलुया। That's the promise of God. हालेलुया। उस शिष्यों को देखो कि जौने भीतरे जंगल में गैस छोड़े होते, जब वो कुल्हाड़ी गिर गई, जब वो लोहा गिर गया, सबने देखा, आपने देखा कि इसका परिवार खत्म हो गया। आपने देखा इसका परिवार खत्म हो गया। आपने देखा इसका परिवार खत्म हो गया। आप सबने देखा इसका परिवार खत्म हो गया। और आप सब देखेंगे इसका और इसका परिवार फिर से बनते हुए। हालेलुया। नेवर वरी, कभी चिंता मत करें कि आपका परिवार खत्म हो गया। जो लोग हंस रहे थे, एक दिन वे आपकी शरण आएंगे। Amen. Hallelujah. Oh, Jesus is a powerful God. Amen. जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, वे एक दिन सीरियस होंगे आपके लिए। Amen. Hallelujah. जिन लोगों ने दरवाजा बंद करके आपके बारे में आलोचना किया था, अब वे दरवाजा खोलकर आपकी प्रशंसा करेंगे। Amen. Our Jesus is powerful God. Hallelujah. যারা আপনাকে লজ্জিত করেছিল, যারা আপনাকে খুব হালকা নিয়েছিল, they will take you in their precious stock. Amen. They will be taking you very seriously.
और का you need a good connection. You need a good connection. आपको परमेश्वर से एक अच्छा कनेक्शन चाहिए जो टूट गया है कहीं ना कहीं. That's why Jesus bore a cross for us. इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस उठाया. बहुत लोग बोलते हैं कि अगर यीशु कमजोर था तो उसने क्यों हम सब के लिए जान दिया? वो पहले अपने आप को बचाता. पहले वो यीशु अगर आपका परमेश्वर है वो पहले अपने आप को बचाता. अगर प्रभु नहीं मरता क्योंकि सब मरे हुए थे, एक ही के पास जीवन था. हम सब जमीन में गिरे हुए थे. हम सवाल वक्तों में छिड़ा. हम सब अंधकार में खोए हुए थे. अगर वो गाठ जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, अगर वो ऊपर नहीं आता, अगर वो नहीं आता, अगर वो पिता अपने पैर से उस डाली को काट कर हमें नहीं देता, अगर वो क्रूस पर नहीं उठाता, तो आज हम सब यहाँ नहीं होते मेरे प्रिय. हम यहाँ नहीं मरे जाते. Because of his sacrifice, because he laid his life for our sin. वो हमारे पापों के लिए, हमारे दुर्बलताओं के लिए वो गिर गया ताकि हम उठ सकें. Yes, hallelujah. Why Jesus was falling down? क्यों प्रभु क्रूस उठाकर हम गीत भी गा रहे हैं? कैसे चलता वो क्रूस लेकर, गिरता हर कदम पर, बरसते उस पे कोड़े और सिर पर है उसके कांटे का मोहर. मेरे प्रियो, वो इसलिए गिर रहा था ताकि हम उठे. पिता के पास एक सुंदर सा पेड़ था. एक ब्रांच को काटा गया ताकि हमें जीवन मिल सके. There was no hope in our life. हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी. But we began hope for our life. Amen. Hallelujah. मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि आयोग की पुस्तक 42 वर्ष 2 में क्या लिखा है? Job 42 वर्ष 2, the book of Job. आयोग की पुस्तक उसका 42 में क्या लिखा है? I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be worthy. Amen. Unusual thing God can do. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है. Amen. ये विश्वास होना चाहिए. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है. Amen. चेलों ने इसीलिए एलिशा को लाया क्योंकि वो उसे मालूम था अगर कुछ होगा तो ये बचा लेगा. आप जहाँ भी जाओ यीशु को लेकर जाओ. आप जो भी करो यीशु को लेकर करो. आप जो भी डिसीजन लो यीशु को लेकर करो. अगर नहीं गिर जाओगे तो वो उठा लेगा आपको. हालेलुया. He can do all things. वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज बहुत सारे लोग God has given me the gift of prophecy, and God has given me the gift of discerning spirit. आत्माओं को परखने का वरदान. जो भी मुझसे बात करता है, I can feel it and I can sense it what he's saying. मैं feel कर सकता हूँ what intention he has. उसका मतलब क्या है? Amen. Hallelujah.
भी कर सकता है। उस लकड़ी काटी, उसे पानी में रखा और वो लोहा जो जमीन को छू गया था, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे कितने लोग यहाँ हैं? ये लोग मैं तो बोलना चाहेगा दोनों आशा नहीं कि आपका जीवन में कुछ भालो होते पारे, आप खो चुके हो। पर तो मैं आपको बताऊं, आज प्रभु आपको उठाना चाहता है। आज प्रभु आपको उठाना चाहता है। आप गिर रहे हो, गिर रहे हो, गिर रहे हो, गिर रहे हो, जमीन को छू चुके हो, but he will lift you up। वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा, वो आपके परिवार को ऊंचा उठाएगा। He will lift you up, he will lift your business। वो आपके व्यवसाय को भी उठाएगा, वो आपके नौकरी की जगह में भी आपको आशीष देगा। पर परमेश्वर का एक ही सवाल है कि तू कहाँ गिर गया? आमेन। यहाँ बाइबल बताती है कि प्रभु ने ऐसे बहुत बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब हम वापस इस जगह में आए, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, परंतु जब वो एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैठ से निकलकर जल में गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो उधार मांगी हुई थी। आमेन। वो तो बहुत कष्ट से उधार मांगी हुई थी, अब हम कैसे लौटाएंगे? आमेन। हालेलुया। वो खो चुका है, हम क्या करेंगे? कोई आशा नहीं है। There is no hope in our life। Amen। पर आज प्रभु का वचन कह रहा है, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, He can do the supernatural miracle। परमेश्वर हमारे जीवन में supernatural miracle कर सकता है। Natural thing can happen in this world, but in this world only one person can do the supernatural, that is only God। Amen। Only God can do the supernatural work in our life। একমাত্র প্রভু আছেন যিনি আমাদের জীবনে supernatural কাজ করতে পারে। Amen। Hallelujah। আজকে আপনি আপনার শরীর জায়গা থেকে আপনি পড়ে গেছেন, আপনি আপনার বিশ্বাসে পড়ে গেছেন, যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি পড়ে গেছেন, যদি আপনি স্পিরিচুয়ালি পড়ে গেছেন, যদি আজকে আপনার পরিবার ভেঙে গেছে, যদি আজকে আপনার পরিবারে ওই ভালোবাসা এখন নেই যা ছিল, হাজব্যান্ড ওয়াইফের সঙ্গে যে রিলেশন ছিল সেটা নেই, ঈশ্বরের সঙ্গে যে আপনার রিলেশনশিপ ছিল সেটা এখন নয়, যদি আজকে আপনি এখানে আমার বাক্য শুনছেন, আমি আপনাকে বলতে চাইছি আজকে প্রভু আপনাকে তুলতে চাইছে। উনি আমাদের জীবনকে কেন ভালো করতে পারবেন না? Amen। वो जब लोहे को भी ठहरने की शक्ति दे सकता है, तो वो हमें और आपके जीवन को भी अच्छा बनाने का ताकत रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने ऐसे बहुत मिरेकल अपने जीवन में किए मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम यात्रा पुस्तक पढ़ी, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि खुदा ने लाल समंदर को भाग कर दिया अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर अपने दास और दासी के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम देखें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। Amen। Supernatural work। We can see the Bible कि प्रभु ने लाजर को जिंदा किया। Amen। उसने लाजर मर गया था, परंतु प्रभु ने उसे जिंदा किया। लोग भूखे थे, प्रभु ने उन्हें खाना खिलाया। लोग आकर एक जगह फंस गए, जब हम आगे नहीं जा सकते। जब प्रभु एक्सपेंशन देता है, तो दाहिने से भी देता है, बाएं से भी देता है, पीछे से भी देता है, और अगर आगे कोई रुका हुआ है तो प्रभु उसको हटा देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। Amen। हालेलुया। अगर पीछे से कोई शत्रु हमारा पीछा कर रहा है तो
बहुत आसान है, अच्छा बनना बहुत कठिन है। खराब बनना आप यूं खराब बन सकते हो। If you want to become bad, you can be a bad in 1 second. But if you want to be a good, it takes whole life. Amen. अगर अच्छा बनना है सारा जीवन लगता है, अगर खराब बनना है 1 सेकंड लगता है। Amen. इसीलिए अच्छे लोग बहुत कम हैं, इसीलिए अच्छे लोग बुरे लोग ज्यादा हैं। Amen. इसीलिए प्रभु ने कहा तुम बुरे लोगों की संगति मत करना। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा है वो भी खत्म हो जाएगा। Amen. हालेलुया। इसीलिए प्रभु के दासों ने कहा एलीशा को कि आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ रहें। शायद अगर एलीशा नहीं जाता वहां तो पता नहीं ये लोग क्या करते। Amen. हालेलुया। प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के आश्रय में रहे। बाहर के दोस्त आपको क्या दे सकते हैं? क्या देंगे? आपको थोड़ा सा खुशी देंगे। बाहर के दोस्त जो शराब पीते हैं आपको क्या देंगे? आपको फ्री में एक शराब का बोतल देंगे, आपको फ्री में रोज शराब पिला सकते हैं। और क्या देंगे? आपको एक छोटा सा सिगरेट का पैकेट दे देंगे। और क्या देंगे? अगर आप चरस पीते हो, गांजा और क्या गांजा खाते हो, वो सब आपको देगा, वो लोग फ्री में देगा, और अच्छा जीवन नहीं देगा। I challenge everyone. If your friend, अगर आपका दोस्त आपको रोज शराब का बोतल देता है, is not your good friend. I can challenge you. अगर आपका दोस्त अपना सिगरेट पीता है, बोलता है किलो खा, is not your good friend. Not your good friend. Amen. पर एक दोस्त ऐसा दोस्त होता है, मैं सच बोलता हूँ, तू भी सच बोला कर। मैं मुझसे गंदी बात नहीं बोलता, तू योगी तो मुक्ति दे भूल माथा पड़ गई। गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त अपने दोस्त को अच्छा बनाते हैं। बुरे दोस्त अपने जैसा दूसरों को भी बुरा ही बनाते हैं। अरे मैं तो अपनी बीवी को बहुत पीटा, पैसा नहीं दे रही थी, तू भी मारा कर। ये बुरे दोस्त। अच्छे दोस्त, बाइबल में लिखा है अपनी पत्नी का आदर करो। बाइबल में लिखा है हे पत्नियों अपने पति के आदर करो, अपने पति के ऊपर मत रहो। आमीन। इसीलिए प्रभु ने पत्नियों को मछली के हड्डी से बनाया है ना, यहाँ ताकि पति के ऊपर न जाओ। अच्छे दोस्त आपको अच्छी चीजें बताएंगे, बुरे दोस्त आपको बुराई की ओर लेकर जाएंगे। एक दिन आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। उस समय कोई भी ईश्वर का दास नहीं मिलेगा जो बोलेगा लकड़ी काट के यहाँ डाल दियो, बहुत देर हो जाएगा। अभी समय है, अभी वक्त है, प्रभु यीशु आपके संग खड़ा है। अभी वो वक्त है, प्रभु আপনাকে আবার তুলতে চাইছে। এখনই ওই সময় আছে, ঈশ্বর আপনাকে ওই লজ্জা থেকে, ওই কষ্ট থেকে, ওই ব্যথা থেকে ঈশ্বর আপনাকে তুলতে চাইছেন। আজকে ওই সুযোগ আছে আপনার কাছে, আজকে ওই সুন্দর সুযোগ আছে। ঈশ্বরের হাতকে সুন্দরভাবে ধরে নিন, প্রভুর হাতকে ধরে নিন। আমার হ্যাঁ প্রভু, আমি তোমার সাথে চলতে চাইছি, আমি তোমার সাথে থাকতে চাইছি, আমি আর লজ্জিত হতে চাইছি না, আমি আর মিথ্যে জীবন যাপন করতে চাইছি না। मैं अब झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं लज्जित जीवन जीना नहीं चाहता, परंतु मैं परमेश्वर में और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ।
He loves you. यीशु आपको प्यार करता है ताकि हमें बचा सके, ताकि हम सबको बचा सके। आइए पाप से निकलिए, आइए गुनाह से निकलिए, आइए शैतान के हाथों से निकलिए और प्रभु के हाथ में आ जाइए। Oh, come to Jesus. He loves you. In this world, everyone, you see that they love you. इस संसार में आपको सबको लगता है प्यार करते हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक बहुत धनवान व्यक्ति, so rich, he died, वो मर गया। और मरने से पहले अपने बेटे को बोला, बेटा ये लो, मेरे पास यही था, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास बहुत सारा घर तो नहीं है, पर मेरे पास ये दो चीज है। तो उसने दो चीज किया, एक डायमंड था और एक कांच का बना डायमंड, एकदम सेम, एक जैसा दिखता है, फर्क एकदम नहीं है। और उसने अपने बेटे को दिया और पिता मर गया। तो लड़का सोच रहा है, अगर मैं ये डायमंड बेच दूं तो बस मुझे यही पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया, वो डायमंड और वो जो कांच का बना हुआ, वो दोनों को लेकर गया एक राजा के पास। राजा को बोला, राजा इसमें से बता दो कौन सा हीरा है, इसमें डायमंड कौन सा है। अगर आप बता दोगे तो ये डायमंड आपको दे देंगे, और अगर नहीं बताए तो आपको आपके खजाने का आधा मुझे देना होगा। राजा ने बोला, इट्स वेरी इजी, मैं जरूर बता सकता हूँ। ओके, मैं नहीं, मेरे लोग बताएंगे। जितने उनके सलाहकार मुझे सब आए, कोई बता नहीं पाया, सब उसी को बता रहे जिसका टाइम। ऐसे करके वो बहुत सारे जगहों में गया, बहुत पैसा कमाया ऐसे करके। एक बार शीतल समय से ठंडा का समय था, तो राजा बाहर में धूप खा रहा था और उसके लोग भी। तो वो दूर से देखा एक राजा बैठा है, तो वो गया और जाकर बोला, राजा मेरे पास ये दो चीज है, अगर आप बता दो इस पर डायमंड कौन सा है तो मैं ये डायमंड आपको दे दूंगा, और मेरे बैलगाड़ी में जितना सोना जितना पैसा है सब आपको दे दूंगा। और अगर नहीं बोल पाए तो आपके राज्य का आधा संपत्ति मुझे देना होगा। राजा बोला, इट्स वेरी इजी। तो राजा ने सबको बोला, जाओ बताओ कौन सा है और ले लो उसका सब संपत्ति। तो একটা অন্ধ ছিল, वहां एक अंधा। तो अंधा बोलता है, राजा क्या मैं बोल सकता हूं? तो राजा बोला, अरे আমার হাতে পুরো সম্পত্তি চলে যাবে, তুই বলতে পারবি না? तो बोला, ट्रस्ट मी राजा, ट्रस्ट मी किंग, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूं। अच्छा ठीक है, बताओ। उस दोनों हीरा को और डायमंड को और वो जो ग्लास का बना है उसको दोनों को एक टेबल पे रखा। तो रखने के बाद उसने राजा को कहा, मुझे आग चाहिए, फायर। और फायर में दोनों को डाल दिया, दोनों को आग में डाल दिया। आग में डालने के बाद बोला, आप निकालो, मेरे हाथ में दो। तो जो कांच का था वो बहुत गर्म, और जो डायमंड जो था वो बहुत ठंडा। कांच गर्म हो जाता है और डायमंड
ठंडा ही रहता है। अगर आप डायमंड हो, आप ठंडे रहोगे, आपका वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप कांच हो, हर बात में गुस्सा करोगे, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करोगे, छोटा सा चीज होगा आप गुस्सा करोगे। अगर आप डायमंड हो, आप शांत रहोगे। अगर आप डायमंड हो, आपको मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा वैल्यू है। I have got value in my life। मेरा मूल्य बहुत है, मेरा कीमत बहुत है। मेरे इस दोस्त को मालूम नहीं मेरा वैल्यू क्या है। एक दिन वो समझेगा আমার মূল্য কত আছে। My dear friends, today God wants to bless your life। प्रभु आपको वहां से उठाना चाहता है जहां आप गिर गए थे, जहां लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था। He really wants to bless your life। So come to Jesus। He will give you value in your life। Amen। उस लोहे का जो गिर गया था उसका वैल्यू खत्म हो गया, और तो जब उठ गया तो उसका वैल्यू हो गया। क्यों? क्योंकि it became miracle। अब अगर आप गिरे हुए हो, आपका वैल्यू नहीं है। अब जब सबके सामने